हाँ बोलिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मैंने लास्ट क्लास की आपको फोटो भेजी थी, वो मेरे हाँ नेटवर्क हाँ इशू हो रहा ठीक था, है। देख लो सर अपने व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ सर ठीक है मेरी ठीक है। अटेंडेंस लगा देना। हाँ हाँ ठीक है, लगा देंगे तो इसमें लगा देंगे। लगा रोल देंगे। नंबर। काम करो ना, छोड़ो ना यहाँ पे। तुम अपना काम करो ना, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, उसको निकालो उसको जो है समाज से।
Today, in the class of the project management PEC 5, we will discuss about the financial analysis of the project. That will continue from the tomorrow's lecture. The Unit 2 syllabus is the go-no-go decision based on the project identification and screening, project appraisal, market analysis, technical analysis, social analysis, ecological analysis, financial analysis, and the project selection, pragmatic, pair-wise, and multi-attribute decision-making approach. In this, we are going for the financial analysis of the project. The projected balance sheet will be here is shown in the table in the format of the balance sheet is there. The balance sheet showing the balance in the various assets and the liability accounts reflect the financial condition of the firm at a given point of the time. The format of the balance sheet of the Company Act is defined below. Liability will be the share capital, reserves and surpluses, secured loans, unsecured loans, current liability and provision. Assets will be the fixed assets, investment, current assets, loans, advances, miscellaneous expenditure and losses. The liability side of the balance sheet shows the sources of the finance employed. Finance employed by the business. Share capital consists of the paid up equity and preference capital. Share capital consists of the paid up equity and the preference capital. Reserves and surplus represent mainly the accumulated retained earning. They are shown in the different accounts like the capital reserve, investment allowance reserve, and the general reserve. Secured loans represent the borrowings of the firms against which security has been provided. The important components of the secured loans are debenture, term loans from financial institutions, and loans from commercial banks. Unsecured loans represent borrowings against which no specific security has been provided. The important constituent are fixed deposits from public and unsecured loans from the promoters. The time value of the money has a time value. A rupee today is more valuable than a rupee year. एक रुपया जो पिछले साल था उसका इस साल वैल्यू ज्यादा है. Why? There could be the several reasons behind this. Individuals in general prefer current consumption to the future consumption. आपका जो करंट कंजम्पशन है आपको फ्यूचर कंजम्पशन से आपको ज्यादा है. कैपिटल कैन बी एम्प्लॉयड प्रोडक्टिवली टू जनरेट पॉजिटिव रिटर्न्स. An investment of 1 rupee today would grow to 1 plus R a year. Hence, R is the rate of return earned on the investment. एक इन्वेस्टमेंट अभी जो लगाते हैं वो जो है आपको 1 plus R a year आपको ग्रो हो जाएगा. R is the rate of return earned on the investment. ये आपको ग्रो हो जाएगा. दूसरा, in an inflationary period, a rupee today represents a greater real purchasing power than a rupee year. Hence, the rupee का जो वैल्यू होगा वो आपको ज्यादा होगा. Future value of a single amount. What will be the future value of a single amount? The processing of investing money as well as reinvesting the interest earned is called the compounding. The compounded value of interest investment after n years when the interest rate is given by this formula. है ना? Given by this formula, the future value of the compounded value of the investment, the future value for or compounded value of an investment after n years, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको n years के बाद में जब इंटरेस्ट रेट R होगा तो आपको होगा. In this equation, 1 plus R n is called the future value interest factor or simply the future value factor. To solve future value problems, you have to find the future value factors. You can do it in the different way. है ना? Compound in the simple interest. Compound in the simple interest. So far we have assumed that the money is invested at a compound interest, which means by that interest payment is reinvested to earn the future interest in future period.
तो इफ नो इंटरेस्ट इज अर्न ऑन इंटरेस्ट देन द फ्यूचर वैल्यू आपका होगा प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस नंबर ऑफ ईयर्स इनटू इंटरेस्ट रेट। ये आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी आपका यहाँ पर निकल जाएगा। हाँ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी ये आपको यहाँ पे निकल जाएगा। आपको यहाँ पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का ये आपको प्रॉब्लम ये आपको यहाँ पर बताया गया है। सपोज यू इन्वेस्ट रेज 5,000 फॉर 3 years in a saving account that pays 10% interest per year. If you let your interest income be reinvested, your investment will be grow as follow. Principal at the beginning 5,000, investment for the year 500, है ना। आपको प्रिंसिपल एट द एंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 5,500। सेकेंड ईयर में क्या हो गया, ये आपको प्रिंसिपल हो गया एंड इंटरेस्ट क्या हो गया 550 हो गया, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 6,050 हो जाएगा। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ये आपको प्रिंसिपल हो जाएगा। इंटरेस्ट फॉर द ईयर क्या हो गया 605 हो गया, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो गया थर्ड ईयर में। तो इसी तरह आपको ये जो आपको निकाला है ना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द सिंगल अमाउंट, ये आपको निकल जाएगा, है ना। डबलिंग पीरियड, investor commonly ask the question, how long will it take to double the amount at a given rate of the interest? किसी रेट ऑफ द इंटरेस्ट पे कितने दिन में कोई अमाउंट डबल हो जाएगा, ये इन्वेस्टर्स जो है कॉमनली
हेलो सर। हेलो सर, कहाँ गए? हाँ तो रहे मनोज सर, आवाज नहीं आ रही बस उनकी। स्टार्टिंग से ही नहीं आ रही क्या? अरे ना, अभी गायब हो गई 10 मिनट से सर की आवाज। बे यार, मेरे को अटेंडेंस लगवानी है। तो खाना खा रहे हो क्या? अरे खाना नहीं खा रहे, पढ़ा रहे हैं सर, आवाज नहीं आ रही सर की। माइक भी तो बंद कर लिया, अभी बंद करा, पहले तो चालू था। सर भी स्टूडेंट के वाले काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो अनम्यूट हो गया था लग रहा है, तो फिर अभी अभी मैंने क्लियर किया, तो आप बताया, तो फिर उसको अब आवाज आ रही होगी। यस सर, अब आ रही है सर। हाँ 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 कोई बात नहीं सर, हो जाता है सर कभी कभी। हाँ हाँ। सर मेरी ना पिछले लेक्चर के लगा दो सर अटेंडेंस में, ना नेट नहीं चल रहा था सर, अभी मैंने वाईफाई लगाया सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? निखिल जी। निखिल का, ठीक है, ठीक है, लगा देंगे। पिछले वाली सर, हाँ ठीक है सर। हाँ, ठीक है, लगा देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। कंपनी कॉस्ट ऑफ ए कैपिटल एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप यहां से निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपका निकलेगा, एसएमएल अप्रोच है, एंड पॉपुलर अप्रोच एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन रिलेशनशिप है इक्विटी इनटू द एसएमएल, द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द कंपनीज इक्विटी विल बी, ये आपको दिया हुआ है। आर क्या है? रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन द इक्विटी ऑफ कंपनी है। R1 रिस्क फ्री रेट है। बीटा, सर। हाँ बोलिए। मनोज सर, हाँ बोलिए। अटेंडेंस लगा दो। हाँ, अटेंडेंस लगा देते हैं, सबका लगा देते हैं। दीपक जी 110, योगेश जी 167, निखिल जी 122, रजनीश कुशवाहा जी 134, फैजान जी 111, फ्रांसू जी 112, गुरदीप जी 114, कुंदन जी 163, पवन जी 127, नाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका अटेंडेंस जो है वो लग गया है। पवन ठीक जी है सर, थैंक यू। हाँ, पवन जी 127, शुभम सिंह आए हुए अभी। शुभम सिंह 143 का भी लग गया, तो टोटल 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। पवन जी 127, कुंदन जी 163, फ्रांसू जी 112, फैजान जी 111, रजनीश जी 134, निखिल जी 122, योगेश जी 167, गुरदीप जी 114, दीपक जी 110। ये आपके 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, 10 का आपका अटेंडेंस लग गया। अभी पार्टिसिपेंट कम हो रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स तो पता नहीं कहाँ जो है, क्लास कर ही नहीं रही बच्चे। Required return on equity of the company, RE, RF the risk-free rate, B beta of the equity of the company, and ERM expected return of the market portfolio. ये आपको फार्मूला है, RE इक्वल टू RF प्लस बीटा ई प्लस ई आर। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है शुभम जी का।
हाँ तो अटेंडेंस लगा दो सर मेरा नेट। हाँ लगा तो दिया, शुभम जी का लगा दिया, शुभम जी का लगा दिया। लगा देते हो कोई दिक्कत। These are the SML approach of the cost of the equity. Bond yield plus risk premium approach. By this approach, the formula is the earning price ratio approach. According to this approach, the cost of equity is EEI by PO. EEI is the expected earning per share of the next year. P0 the current market price of the share. है ना? तो EI may be estimated as the current earning per share into 1 plus growth rate per earning of the share. ये यहाँ से आपको मिल जाएगा. This approach provides an accurate measure of the rate of return required by the equity investors in the following two cases. When the earnings per share are expected to remain constant and the dividend payoff ratio is 100%. When retained earnings are expected to earn a rate of return equal to the rate of return required by the equity investor. Determining the proportions for calculating the WACC, है ना? तो ये आपको फाइनेंशियल एनालिसिस था, फाइनेंशियल एनालिसिस का आपको पूरा आपका कंप्लीट हो गया. ये आपका एसएमएल अप्रोच है. एसएमएल अप्रोच से आपको इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको वहां पे निकलेगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन सीरीज, ये आपको इस फार्मूला से निकलेगा. कोई अनइवन सीरीज है तो उसका इस फार्मूला से आपका वो निकलेगा. A1 by 1 plus R1, A2 1 plus R2, A3 1 plus R3 plus AN 1 plus RN. PBN, present value of cash flow of stream. A1, cash flow of occurring at the end of year T, or discount rate and duration of the cash flow stream. ये आपको निकलेगा, है ना? तो PVFAN इक्वल टू A1RN प्लस A1RN माइनस ये आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको निकलेगा. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी यहाँ से निकल जाएगा, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा. A11 प्लस RN माइनस 1 डिवाइड बाई R. FBN फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है विच हैज बीन ड्यूरेशन ऑफ द एन पीरियड. ए कांस्टेंट पीरियडिक फ्लो है. R इंटरेस्ट रेट पर पीरियड है एंड ड्यूरेशन ऑफ द एन्युटी है. इससे आपको निकल जाएगा. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सिंगल अमाउंट इस फार्मूला से निकल जाएगा. FVN इक्वल टू PV 1 प्लस RN, इससे आपको निकल जाएगा, है ना? तो डिवाइडिंग बाई बोथ इक्वेशन बाई 1 बाई RN वी गेट PV इक्वल टू FVN. ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है. द फैक्टर 1 by RN is called the discounting factor or the present value interest P by IN. What is the present value of 1,000 receivable 6 years? Hence, if the rate of discount is 10%, the present value is this one. है ना? The compound and simple interest, ये यहाँ से आपको निकल जाएगा. डबलिंग पीरियड कैसे निकलेगा ये यहाँ पे आपको बताया हुआ था कि आपको डबलिंग पीरियड निकालने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट से जो अमाउंट है उसको इंटरेस्ट से आपको आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको डबलिंग पीरियड आपको निकल जाएगा. ये फार्मूला लगाया हुआ था. ये आपमें आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल अमाउंट निकालना है. FVN PB 1 plus RN. 1 plus RN is called the future value of interest factor, or simply the future value of the factor. First year principal at the beginning, interest for the year and principal at the end. ये आपको हो जाएगा. Second year में principal at the beginning, interest for the year, principal at the end, ये आपको ये हो जाएगा.
प्रिंसिपल एट द बिगनिंग ये होगा, इंटरेस्ट फॉर द ईयर ये होगा, प्रिंसिपल एट द एंड आपको ये हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ द मनी है ना, मनी का जो है टाइम वैल्यू होता है, वो मनी जो है टाइम वैल्यू के साथ जो है आपको ग्रो करता रहता है। इस कॉन्सेप्ट में आपको यही आपको बताया हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी है ना, ये आपको बताया हुआ है। और बैलेंस शीट में, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में लिएबिलिटी होता है और एसेट्स होता है। लिएबिलिटी में शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस होता है, सिक्योर्ड लोन्स होता है, अनसिक्योर्ड लोन्स होता है, करंट लिएबिलिटी एंड प्रोविजंस होता है, एसेट्स में फिक्स एसेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट्स होता है, करंट एसेट्स से होता है, लोन्स होता है एंड एडवांसेस होता है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस होता है, आपको करंट एसेट में होता है। तो बैलेंस शीट में आपको ये आपको फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, ये आपको फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये एसेट्स आपको दिया हुआ है, लिएबिलिटी आपको दिया हुआ है। तो liability side of the balance sheet shows the source of the finance employed by the business. Share capital consists of the paid up equity and preference capital. Reserves and surplus represent mainly the accumulated retaining earning. They are shown in the different accounts like the capital reserve, the investment allowance reserve, and the general reserve. Secured loans represent the borrowing of the firm against which security has been provided. The important components of the secured loans are the debentures, term loans from financing institutions, and loan from commercial banks. Unsecured loans represent borrowings against which no specific security has been provided. है ना, तो ये आपका फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट है। एक साइड में लिएबिलिटी है, एक साइड में एसेट है, एसेट में फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट्स है, करंट एसेट्स है, लोन्स है, एडवांसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस है, लिएबिलिटी है, उसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है, सिक्योर्ड लोन्स है, अनसिक्योर्ड लोन्स है, करंट लिएबिलिटी एंड प्रोविजंस है। तो ये आपका फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट हो गया। तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको निकल गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट यहां से निकल गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल अमाउंट यहां से आपको निकल जाएगा। FVN इक्वल टू PV 1 plus RN, 1 plus RN is called the future value of interest factor, simply the future value factor, है ना। फर्स्ट ईयर का निकल गया प्रिंसिपल आपको निकल गया, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल निकल गया, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल आपको निकल गया। कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट आपको यहां से निकल जाएगा, फ्यूचर वैल्यू आपको निकल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू 1 plus नंबर ऑफ ईयर्स इनटू इंटरेस्ट रेट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल अमाउंट आपको इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, है ना। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय द इक्वेशन 1 plus RN वी गेट द PV इक्वल टू FVN 1/1 plus RN, ये आपको निकल जाएगा। द फैक्टर 1 plus RN is called the discounting factor or present value interest factor, PVIN. What is the present value of the rupees 1000 receivable 6 years hence if the rate of discount is the 10%. Present value of the uneven series ये आपको हो जाएगा, PVN equal to A1 by 1 plus R1, A2 1 plus R2, A3 1 plus R3, AN by 1 plus RN. Present value of a case of value of the stream, A1 case flow occurring at the end of the year T, R equal to discount rate, N equal to duration of the case flow stream, ये आपको निकल जाएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी आपको यहां से इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, FVAN A plus 1 RN, है ना, A 1 plus RN minus 2, ये आपको इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, है ना, इस फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ये आपको यहां से निकल जाएगा।
है ना। ये आपको सारा आपका डिवीजन हो गया। आपको फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोजेक्ट का यही था आपका। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको यहां से निकल जाएगा। है ना, आर ई हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा, बीटा फैक्ट हो जाएगा, ये आपको निकल जाएगा। है ना, अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच से आपका ई आई बाई पी ओ ये आपको निकल जाएगा। है ना, तो ये आपका खत्म हो गया, फाइनेंशियल एनालिसिस आपका खत्म हो गया। है ना,